Welcome to the WIP show, where we explore the stories and ideas that challenge the way we think, feel, and live. I'm Namrata, your host. WIP, you might ask, well, it stands for Writing in Progress, and that's exactly what we are all about here. Each week, we bring you inspiring conversations with writers and acclaimed people delving into their journeys, their challenges, and the stories behind their stories. We explore the nooks and crannies of their process, of their writing, overcoming writer's block, finding inspiration in the unlikeliest of places, or simply navigating the wild, wonderful world of words. We are here for it all. So grab your favorite mugs, settle in your coziest corners, and join us as we celebrate the beauty and the chaos of the writing life. Today, we step into one of the most emotionally charged and socially urgent conversations of our time, the quiet but devastating preference for sons over daughters in Indian society. Joining us is Dr. Aruna Kalra, senior gynecologist, robotic surgeon, and author of the powerful new book, I Want a Boy. With over 25 years of experience in maternal health care, Dr. Kalra has been a witness to the human cost of gender bias. Stories that begin in the womb but echo across generations. In this episode, we will explore how son preference affects the reproductive choices, maternal health, and the way we value life itself. This is not just a medical issue, it's a moral, cultural, and a deeply personal one at that. Let's dive in. Welcome, Dr. Kalra, and thank you so much for taking out time for this today. Thank you very much, Namrata. And as you rightly said, that this is not a social issue only, then not the we should actually have. This is moral issue. This is public issue. This is statistical issue which we are dealing with. And for me, as a clinician, as a gynecologist, I so every gynecologist must be seeing these kind of biases and these kind of stories in their practice. But it is absolutely disturbing. And if you are treating a patient as a whole, not only the clinical part of it, not only antenatal part and delivery part, if you go deeper into their stories, their lives, you would understand that their psychology is getting affected, their self-esteem is getting affected. They are used as child-producing machines because they're producing daughters, and every time they produce daughter, there is a question and ask for uh, son. So every year after year, their bodies are utilized as if they are machines. So it's a big, uh, I would say, um, hurt or big effect on their psychology as well as on physical health. True, true. Very rightly said. So, Dr. Kalra, I Want a Boy is the title of your book, and it's not just a title, it's actually a cultural statement that you're trying to make here. What made you choose this provocative title, and what emotions or reactions were you hoping to evoke in your readers? So these books are piled up on my desk also when I see patients. Every time some nice patient or attendant would ask me, I want a boy. What do you want to say with this title? I would say, what do you think? Like, do you think that it is a sarcasm? It is a reflection of our society that every time anybody sits across the table as a patient, as an attendant, as a mother-in-law, don't they want that I want a boy only? Yes, this is. I just wanted to show them the mirror that Right. you actually want this. This is not. It's. I would say ये बहुत rare नहीं है. It's very very common. Everybody wants that. Okay. सटल तरीके से बोले, अच्छा डॉक्टर साहब बता दीजिए कि हम लोग पिंक कलर का कमरा करवाएं कि ब्लू कलर का कमरा करवाएं, या डॉटर्स तो हम हैं हमारे पास, फैमिली कंप्लीट हो जाती तो अच्छा था, अब बता दे तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको शुगर कोट करके कहें या कैसे भी कहें,
जो बुक का टाइटल आपके सामने है, आई वॉन्ट अ बॉय, आप भी वही चाहते हैं. तो आई जस्ट वॉन्टेड देम टू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल, एंड दे sometimes they feel uncomfortable. I wanted them to feel uncomfortable कि ये क्यों टाइटल रखा, इसमें क्या परेशानी है कि अगर कोई बेटा चाहता है फैमिली कंप्लीट करने के लिए. दोनों तरीके के बच्चों को पालने का अलग मजा है. Right. अगर हमारे पास डॉटर है तो बेटा भी होना ही चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों लिखा? दिस इज नॉट राइट थिंग टू राइट. आई लाइक, आपको नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, बट इसमें जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये किसी की जान जा सकती है, किसी औरत की, जब आप उसके ऊपर इतना टॉर्चर कर रहे हैं. उसकी आप बहुत सटल तरीके से ही सास बोलेगी कि अरे इस बार भी लड़की हो गई, तो उसको ये बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, या उसको एक इनकम्प्लीट फीलिंग होती है कि मैं नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ बेटा अपनी फैमिली के लिए. तो आई जस्ट, मैंने कहा हाँ, आई वांटेड दिस टाइटल, एंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दिस टाइटल वाज ऑन माय माइंड कि कोई भी पढ़े तो उसको ये लगे कि यही तो है मेरे दिमाग में, मगर लिखा क्यों हुआ है यहाँ पर. दिस इज द मिरर टू सोसाइटी. It's a way of calling them out indirectly. And I've also realized that it's very important to make people feel guilty without actually accusing them of something. It works better rather than accusing, because the moment you accuse, they get very defensive. Like you rightly said, जैसे आपने कहा कि वो ये कहने लगते हैं इसमें गलत क्या है, फैमिली पूरी हो जाती है, इसमें गलत क्या है, इट्स जस्ट अ सोशल रिक्वायरमेंट कि हमें बेटा चाहिए, आप इसमें व्हाई आर यू अक्यूजिंग. तो ये एक बहुत अलग तरीका होता है जहां आप एक स्टेटमेंट पास करके यू आर स्टिल अक्यूजिंग बट नॉट एक्चुअली अक्यूजिंग देम. आप उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि ये क्या कहा गया है. So moving on to a new question, you've drawn heavily from real patient experiences. So was there a particular story or encounter which pushed you to write this book? तो सारे ही पेशेंट के साथ मैं बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो ही जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनकी क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं. चाहे वो उनको एक एसिडिटी ही, सिंपल सी एसिडिटी है, या नींद नहीं पूरी हो रही है, तो मुझे हर बार लगता है कि कुछ और चल रहा है फैमिली में जिसकी वजह से उनको ये फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं. और सेम वे जब मैं बहुत सारी स्टोरीज थी, ये सारी ही रियल स्टोरीज हैं, और सारे ही पेशेंट्स को मैंने देखा है, ट्रीट किया है, इसीलिए ये सब मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि उन पेशेंट वो आज भी मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं जब मैं किसी भी स्टोरी के बारे में सोचने लगती हूँ या पढ़ने लगती हूँ. तो इसमें एक स्टोरी आपने देखा होगा, आरिफा की है. उसमें बहुत ही पेनफुल स्टोरी लगती है मुझे. वो नर्स मेरे साथ काम कर रही थी, मेरी एज की थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, वो भी जॉब कर रही थी, और उसकी 2 डॉटर्स थी, और वो डॉटर्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही थी, और अपने बूते पर अपनी नौकरी के पैसे से कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड कमाता नहीं था. और क्योंकि घर में उसको इतना प्रेशर दिया जा रहा था कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, और उसको ये कहा गया था डॉक्टर ने कि आपका बच्चादानी बहुत बुरी हालत में है, अगर आपने अगली बार प्रेगनेंसी की तो आप डेथ हो जाएगी टेबल पर. एंड शी वो हरसेल्फ वाज नर्स, और उसको ये पता था कि अगला थर्ड प्रेगनेंसी में शी वुड डाई ऑन टेबल. But I don't know what happened, and she conceived, and she did not come to our hospital where she was working, where we had blood bank, where we had all the senior consultants, where we could have saved her. मतलब बाय साइड अगेंस्ट चाहे किसी भी चीज, हमारी खुद की नर्स थी, हम उन्हें बचा लेते, मगर वो एक नर्सिंग होम में चली गई जहाँ की सिवियरिटी ऑफ हर सिचुएशन वाज नॉट अंडरस्टूड, एंड ऑन टेबल एक्चुअली शी डाइड डिलीवरिंग अ बॉय. It was a baby boy. She delivered a baby boy, but she died, and I was so devastated when I heard, because her daughters were pulled out of English medium school. She was now, they were doing household chores from the orthodox low educated class family of theirs, and now she has now she delivered a boy, but what, the life of her daughters didn't matter at all. Mother, this son didn't need a mother,
ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो उसके बेटा जो उसने पैदा किया उसको भी तो माँ चाहिए थी, माँ के बिना क्या इम्पोर्टेंट, क्या बच्चे के लिए लाइफ है। उन दोनों डॉटर्स को जो वो पढ़ाना चाहती थी उनको आज ही अगले दिन स्कूल से निकाल लिया गया, उनकी क्या लाइफ रह गई है, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये समझ नहीं आया। So this story actually, every time I read, every time I think about her, it is really really अनकंफर्टेबल और बहुत ज्यादा दुख देती है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब हर एक स्टोरी मेरे दिल के बहुत नजदीक है। और जब मैं एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में थे, जब मेरी रोटेशन ड्यूटी उस वार्ड में हुई और मैंने उस आरिफा को ढूंढा कि यार वो कहाँ गई नर्स, तब किसी ने मुझे ये स्टोरी बताई। और वो सुनने के बाद मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई, मुझे इतना रोना आया, मुझे लगा कि ये क्यों किया आरिफा है, क्योंकि आई वॉज very good friends with her, and we used to talk. I had a daughter, she had two daughters. We used to talk about everything, and I think मुझे ऐसा लगा कि वो 6 महीने जो मैं नहीं मिल पाई, I could have changed her mind, I could have explained her the severity of situation, she would have been alive here. So I was also feeling guilty that I didn't meet for 6 months of rotation posting. तो हर एक कहानी है, और अगर ऐसी ऐसी कहानियां थी तो जाके आप डायरी लिख देते हैं, डायरी में लिख देते हैं और थोड़ा अनबर्डन कर देते हैं अपनी सोल को। That's how every story I kept writing, and when COVID hit us, मैंने उसको compile कर दिया। That is such a moving story. So in your 25 years of experience, have you actually seen the pressure to have a male child evolve, or it's not evolved at all, or has it evolved at all? I would say evolved, कुछ सोसाइटीज में हो गया है इवॉल्व इन वन सेंस दैट ओके नाउ, पहले क्या होता था कि अबॉर्शन कराने चले जाते थे कि फीमेल है, डायग्नोस हुआ, अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, हमारे लॉज भी स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत इजीली आप अल्ट्रासाउंड करा के पता नहीं कर सकते कि ये डॉटर है। मगर इवॉल्व ऐसा हो गया कि अच्छा ठीक है, अबॉर्शन नहीं कराएंगे तो हम मेल एम्ब्रियो ट्रांसफर कराकर और आईवीएफ से मेल बेबी करा लेंगे। तो वो चीजें अब बहुत आईवीएफ में भी इलीगल तरीके से आप सिर्फ मेल एम्ब्रियो ही ट्रांसफर करा सकते हैं, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई थॉट कि इट्स ओनली अब्रॉड, जबकि अमीर लोग जाके कराकर आईवीएफ से मेल बेबी लेके आए थे, एंड बहुत प्लेनली वो फेस पर कहते हैं कि हमने कम से कम लड़की तो नहीं मारी ना, हमने तो लड़का ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है, तो फीमेल फीटिसाइड तो नहीं किया। और गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया में भी हो रहे हैं, छुपते छुपाते सभी लोग कर ही रहे हैं इस तरीके के काम। तो इवॉल्व इस तरीके से हुआ है क्योंकि यू आर नॉट किलिंग फीमेल, फ्यू परसेंटेज ऑफ सोसाइटी people are not killing now females, but they are doing in other ways कि चलो ठीक है हमें बेटा ही चाहिए तो बेटा ही एम्ब्रियो ही ट्रांसफर कर लेते हैं। मगर हाँ, माइंड सेट इवॉल्व नहीं हुआ है। माइंड सेट बहुत फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी पढ़ गई, लड़के भी पढ़ गए, कॉलेज में मिले, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो उनके माइंडसेट वो दे वांट गर्ल, दे, एंड दिस इज आल्सो वेरी गुड feeling when I see young boys and girls becoming parents and they want daughters, तो वो भी बहुत एक अच्छी फीलिंग है, मगर वो बहुत कम परसेंटेज है। आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, और इंशाल्लाह मैं जिंदा रहूं उस दिन को देखने के लिए जब लोग सिर्फ लड़कियां चाहें या फिर अनबायस्ड हो एटलीस्ट। हाँ हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद कर सकते हैं। बट हाँ आपने जिस तरह से कहा नो, एक्चुअली बहुत शॉकिंग लगता है काफी लोगों को कि अर्बन फैमिलीज में भी ये ये है जेंडर बायस, इवन एजुकेटेड फैमिलीज। आई रिमेम्बर 10-15 इयर्स अगो वो जो आमिर खान का शो था, उसमें जब वो एपिसोड आया था, दे वर इक्वली शॉक्ड कि इट वाज अ वेरी फेमस डॉक्टर हुज एंटायर फैमिली वाज ऑफ डॉक्टर्स, बट दे वर डूइंग दिस फीमेल फोर्टिसाइड। सो आपके क्या थॉट्स है? इज इट डीप कल्चरल कंडीशनिंग? हाउ डज दिस हैपन? Is it overriding progress? Because I don't think education has any role to play if you look at these people from urban families and educated people who are making a stand on this. See, education absolutely has no role. आपको एक अपना मॉरल जो
है, इंटरनलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी करना है। आपका मॉरल स्ट्रांग होना चाहिए। आईएएस को देखा है, डॉक्टर्स आपने कहा आमिर खान के शो में थे, उन्होंने, हम देखते हैं हर रोज कि चाहे कितने भी एजुकेटेड लोग हों, फादर लॉ और कोई बहुत बड़ी पोस्ट से, प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल है, सासू माँ वो कर रही है ऐसा, फोर्स कर रही है कि लड़का होना चाहिए। आप सोचिए ना कैसे चेंज होगा। अगर लड़के होने पे कुआं पूजन हो रहा है, लड़की होने पे नहीं हो रहा है, लड़का होने पे छठी सेलिब्रेट हो रही है, लड़की होने पर नहीं हो रही है, आप हर रोज लड़की को बता रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट सिटीजन ही नहीं है, आप इम्पोर्टेंट जेंडर ही नहीं है, आपकी लाइफ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं जिसको सेलिब्रेट किया जाए। तो वो तो हर जगह है। और क्या ऐसा है क्या कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो कुआं पूजन करा रहा है आपकी बेटी का? कहीं नहीं होता। अगर ये तो मान लिया गया है कि कल्चरल, ये तो है ही नहीं, दिस इज नॉट ट्रेडिशन कि हम कुआं पूजन लड़की का कराएं। भाई क्यों ना कराएं, लड़की माँ ने उतना ही पेन लिया था, उतना ही लेबर में दर्द हुआ था, तो फिर बेटा पैदा होने पे वो एक बेटे की माँ होके उसको वो उपाधि दी जा रही है, उसको खाना अच्छा दिया जा रहा है, उसको आराम दिया जा रहा है, उसको गहने कपड़े दिए जा रहे हैं। और लड़की के होने पे क्या लेबर उतनी स्ट्रांग नहीं थी? तो अगर आपने इतना ज्यादा ही कल्चरल बायस है, और एजुकेशन से एब्सोल्युटली इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक को, अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं, और आप देखिए हमारे मतलब जनरेशन में लड़कियों के पास माँ बाप रह रहे हैं, और रहना भी, इसमें क्या खराबी है अगर लड़की पढ़ लिख गई है और आपको पास रख रही है? और ये बर्डन लड़कों पर ही क्यों होना चाहिए? मुझे ये भी क्वेश्चन है कि भाई आपकी 4 लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां हो गई, एक बेटा हुआ, वो बेचारा मर जाए क्या सबको त्योहार दे देकर, और उसकी बीवी मर जाए, आपके मायके में सब नंदे आ रही हैं, हर वक्त उनको दिया जा रहा है, तो बेटे के ऊपर कितना बर्डन है? या उसी के ऊपर ये बर्डन है कि भाई मुझे बहनों का भी करना है और माँ बाप का भी करना है? तो ये भी गलत है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। हर एक को इक्वल राइट है, माँ बाप के ऊपर भी उतना ही अधिकार है, प्रॉपर्टी के ऊपर भी उतना ही अधिकार है, और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है आपने, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग इस चीज को समझें। और स्पेशली ऑफ कोर्स ये लास्ट राइट्स को लेके भी जो बहुत टची हो जाते हैं आजकल, इफ यू सी न्यूज़पेपर में वो भी आ रहे हैं कि देयर आर डॉटर्स हु आर डूइंग इट एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। व्हाट्स रॉन्ग? दैट्स व्हाट, उसमें क्या ही रॉन्ग हो सकता है? आप बहुत पहले सती प्रथा करते थे, भाई क्यों मरना है किसी औरत को आदमी के साथ? अब वही बात है कि क्यों लड़के को ही करना है, क्यों लड़की नहीं कर सकती? उसमें क्या ही गलत है? आपने लास्ट राइट जो है वो, बच्चा तो आप ही का है, चाहे लड़का है या लड़की है। कहाँ से ये बने थे रूढ़िवादी ख्याल, नहीं समझ में आया। मगर एटलीस्ट नाउ वी आर इन मॉडर्न जमाना है, पढ़ लिख गए हैं बच्चे, तो ये सब चेंज होना ही चाहिए। So, Dr. Kalra, when you talk about the pressure that women go through for having son, so can you talk about the psychological toll that it takes on them, the impact and the various things? Like you said, there are उनके reactions में आपने बहुत कुछ underlying देखा जो pressure में पता चल रहा था कि घर पे हालात कुछ और हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। बहुत बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे एक तो पूरे अगर आप नहीं जेंडर पता कर पाए, वूम में अल्ट्रासाउंड से नहीं देख पाए, पहली 2 बेटियां हैं और तीसरी में पूरी प्रेगनेंसी में पेशेंट जो प्रेग्नेंट है वो स्ट्रेस में रहती है, खाने का मन नहीं हो रहा, सोने का मन नहीं हो रहा, 24/7 एक ही चिंता है कि व्हाट इफ दिस इज अ गर्ल, व्हाट इफ दिस इज अ गर्ल। मतलब एनीमिक हो जा रही है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही ख्याल खाए जा रहा है, मारे जा रहे हैं उनको अंदर ही अंदर कि अगर ये भी लड़की है तो क्या हुआ, अगर मान लो हो गई लड़की, तो उसके बाद ये ख्याल कि मैं अपने पति को लड़का नहीं दे पाई, अब मेरे पति को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, अब मेरा पति बेचारा है, उसके और 2 भाइयों के बेटे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रही, हर बार मैं लड़की ही पैदा कर पा रही हूँ। तो अपने आप के लिए अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो गई, अपनी वैल्यू कम हो गई, अपना ये कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रही अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए वो सब कुछ जो कि मुझे इतना प्यार करता है, हु इज गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके सेल्फ एस्टीम को तो खत्म कर ही रही है। उसको ये लग रहा है कि, और फिर वो एक डिटर्मिनेशन की आई वुड डू एनीथिंग टू प्रोड्यूस अ बॉय,
फॉर माई दिस फैमिली। मैं अपने हस्बैंड को बेटा दे के ही रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी कर जाना चाहिए, तो चाहे मैं बेटियों को गिराऊं, अपने शरीर को खराब करूं अबॉर्शन से, या मैं साल दर साल पैदा करती जाऊं जब तक कि बेटा ना हो। वो एक भगवान से जो लड़ाई का एक मुद्दा शुरू हो जाता है औरत में कि अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ, करके ही दूंगी बेटा। तो ये सारी चीजें मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज, ये गॉड के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, कहाँ बेटा हो रहा है, क्या बेटी हो रही है, तुम्हारी गलती भी नहीं है। तो उसमें एक औरत का सारा ध्यान अपनी हेल्थ से हटके अपनी डॉटर्स को पढ़ाने में, उनको ठीक से बड़ा करने में से हटकर एक आइडेंटिटी सिर्फ इतनी रह गई कि अगर बेटा हो गया तो मुझे एक अमृत मिल जाएगा, एक एलिक्सर मिल जाएगा, तो मैं उसके बाद से अपनी लाइफ शुरू करूंगी, उसके बाद मैं अपनी बेटियों को ध्यान दूंगी, उसके बाद मेरा जीना शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक सिर्फ एक और सब्जेक्ट यही रह जाता है उसकी लाइफ में। ये बात आपने बिल्कुल बहुत वो कही है। ये चीज एक्चुअली एक बहुत दूसरे सवाल, बहुत तरह के दूसरे सवाल खड़े करता है, स्पेशली व्हेन यू लुक एट ऑल्टरनेट थेरेपीज, ऑल्टरनेट हीलिंग्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर अ वुमेन्स हेल्थ, बट बिकॉज आपको वो बेटा चाहिए तो आप मेडिसिन से, साइंस से दूर जाते जाते आप ज्यादा, आई नो समबडी हु डिड दिस, and she eventually, of course, she lost her life, she lost the baby, she lost a lot of things, and it was just because, and I just questioned her one thing. So she used to work at a neighbor's place, but she used to talk because वो कभी कभी हम बुला लेते थे जब हमारे वहाँ पे काम करने की जो आते थी वो नहीं आते थे, तो मैं उनसे ऐसे ही सब पूछ, मैं क्या गारंटी है, उन्होंने सबको करवा दिया है लड़का, बस वो गारंटी है, दैट्स इट, दैट्स द गारंटी दैट दे वर गोइंग वही बाय। एंड सो ये जो चीज जो आप बोल रहे हो, जो प्रेशर, वो फिर वो साइंस से उनको दूर लेके जाता है, क्योंकि उनको लग रहा है साइंस में इसके आंसर्स हैं नहीं, तो वो एक बहुत सारे अलग है नहीं। क्वेश्चंस और हाँ, अलग चीजों, हाँ अलग रिस्क, इट्स एन एंटायर डिफरेंट कैन ऑफ वॉर्म्स देयर सिटिंग जस्ट टू बी एक्सप्लोर्ड, और वो एक पैरेलल इंडस्ट्री हाँ, चल रही है पूरी वहां पर। सो एब्सोल्युटली चलते हैं। और वो या मानते, वो पैरेलल इंडस्ट्री, दे बिलीव दैट जो भस्म वो दे रहे हैं, जो हाँ दवा वो दे रहे हैं, एक्चुअली जेंडर चेंज कर देंगे, दैट टू इन थर्ड मंथ। हाँ तो हाँ, मतलब 12 वीक्स पर जाके ऑलरेडी हो चुका है जो डिसाइड होना है। हम्म। वही वही दिक्कत है ना पूरी की, दे डोंट वांट टू क्वेश्चन थिंग्स व्हेन दे शुड एक्चुअली बी क्वेश्चनिंग, और यही इसीलिए वो वी गो बैक टू द क्वेश्चन दैट वी थॉट, डू यू रियली थिंक एजुकेशन प्लेज एनी रोल हियर, which you rightly said that it's more about morals that we have हम्म। rather than education. So as someone who has operated in both clinic and the public space, how do you think conversations like this can influence policy or public awareness meaningfully? देखिए, जब तक हम इस बात, जैसे स्टोरी फॉर्म में आपको यू कैन रीच टू ऑडियंस, ओके। जब ये बुक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी तो उन्हें ये लगा कि ये क्या सच हो भी सकता है, जो आपने कहानियां लिखी हैं। उन्हें लगा कि ये तो कहानी ही हो सकती है, ऐसे कैसे कोई लड़की को मार सकता है, ऐसे कैसे जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक स्टोरीज उन्हें लगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि ये हो रहा है, ये दिल्ली के हार्ट में हो रहा है, दिल्ली के सेंटर के हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और आप लोग पैरेलली उस जीवन जी रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो जब तक आप इन चीजों को, यू डोंट ब्रिंग दिस टू लाइट, जब तक पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो पॉलिसी मेकर को भी कैसे पता चल रहा है कि डॉक्टर भी कोई नहीं बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे मारा जा रहा है। पता है थोड़ा सा टिप ऑफ आइसबर्ग सभी को पता होगा, मगर यहाँ तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। यहाँ पर हर रोज इसी तरीके की कहानियां हो रही हैं। तो आपको एक अनकंफर्टेबल स्टेट में लाना पड़ेगा सोसाइटी को। Each and every person of society should read about it, should know about it, and should feel कि is it happening, is it real, and if they feel uncomfortable, वो एक सोशल पूरा का पूरा जत्था इकट्ठा होके कि नहीं, इसको रोकना ही है, चाहे मेरी मेड है या मेरी बहन है या मेरी ननद है या मेरी ननद की डॉटर इन लॉ है, किसी के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमें खड़े होके बोलना है। और जब हम बोलेंगे, जब हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, तो पॉलिसी मेकर भी साथ साथ में आएंगे, हमारे एनजीओज भी हमारे साथ में आएंगे। तो मुझे लगता है इसी वजह से तो पीसीपीएनडीटी एक्ट और स्ट्रांग हो रहा है, और रेड
पढ़ रही हैं, मगर सी पॉलिसी मेकर आपके साथ, और हम लोग बहुत और भी स्ट्रांगली इस चीज को उसके अगेंस्ट भी जाना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर काफी कंट्रोल भी करेंगे। मगर जब तक एक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक लड़कियों को अपना अधिकार प्रॉपर नहीं मिलेगा, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तब तक ये पूरी तरीके से ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। True. Dr. Kalra, I was a part of a discussion जहाँ पे हम women's health at large discuss कर रहे थे about decisions जो हम अपनी body पे medically ले नहीं सकते हैं. Like today, even if I walk in, I still need a male member of my family to sign papers and all, even when I'm educated and I know my rights. So one thing that we concluded in that is that खाली women को educate करना काफी नहीं है. Do you agree to that? Because we are not the sole decision makers as per the rules or norms. Do you think men or not Absolutely. other members also need to come on board with this? यस यस, वन थिंग इज दैट, पहला जो आपने बोला कि आपको, आप एजुकेटेड हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और अगर आप प्रेगनेंसी और बच्चा नहीं चाहते हैं तो यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्सेस साइन, इवन योर हस्बैंड साइन। आप अपने आप से साइन करके अकेले अबॉर्शन करा सकती हैं, आपको पूरा लीगल राइट है इस बात का। और दूसरी बात है कि यस, men should be sensitized about it. Sometimes you would again be surprised कि वो उधर से आता ही नहीं है बेटा बेटी के बारे में। कई बार आपके फीमेल फैमिली मेंबर से ही आ रहा होता है। men are very okay about it कि okay whatever it is. Yes, I would not say that patriarchy is not there, वो है, मगर क्या वो सिर्फ मेन मेंबर से आ रही है या उसमें 50% कंट्रीब्यूशन हमारी एज ओल्ड रूढ़िवादी फैमिली मेंबर्स का भी है जो कि फीमेल्स हैं। तो मेन शुड बी सेंसिटाइज्ड एंड आई थिंक वो आसानी से हो भी जाएंगे सेंसिटाइज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी मैंने एक स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन हेल्थ के बारे में 12 साल से 14 साल की लड़कियों की क्लास ली थी, जिसमें एक लड़की ने आके मुझे बोला, आप हमें अकेले क्यों बता रही हैं, हम बॉयज क्यों नहीं है इस सेशन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आपके बॉयज के लिए अलग से सेशन होगा जिसमें कि उनको सेंसिटाइज किया जाएगा कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन फीमेल बॉडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड देन वी बोथ ऑफ बोथ जेंडर्स शुड बी इन वन हॉल, जबकि हम दोनों के को मिला के पहले आपको समझा दें फिर उनको समझा दें। बट yes, what she said was absolutely right. We were not teaching boys about menstrual cycle, about how they should treat females or those batchmates when they are having their menstrual cycle. Same way, this topic also should be, men should also be sensitized and should be taught or educated about it. True. And they love daughters. What I know, they love daughters. Yeah, of course. If you, अगर आप सिर्फ social media trends भी देखोगे तो most of the men are commenting that that's the goal in life, to have one daughter, to become a girl dad. So, Dr. Kalra, if you had to give a message to the young medical professionals about their role in fostering gender justice, what would be that? यंग डॉक्टर्स को मुझे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये होगा कि आप एक फीमेल को जब देखते हैं, एक पेशेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं अपने फील्ड की बात करूं या और भी फील्ड में, आप जब किसी एक पेशेंट को देख रहे हैं तो उसको एज अ होल देखिए। आपने उसके पेन को देख लिया, आपने उसके और सिम्टम्स को देख लिया, बट उसका जो भी फिजिकल सिम्टम है वो उसके पीछे एक स्टोरी हो सकती है, उसके पीछे और बहुत सारी पेनफुल एनवायरमेंटल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से शी इज नॉट एबल और ही इज नॉट एबल टू हैव अ हेल्दी लाइफ। ओके, तो चाहे आप एक पीसीओडी पेशेंट की बात करें कि वो मोटी क्यों है, वो एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रही, या उसके पीरियड्स इरेगुलर या बहुत हैवी है, आपको ये देखना है कि वो, अब अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि वो पेशेंट अपने दोनों पेरेंट्स को कोविड में खो चुकी थी, अभी उसके लाइफ का कुछ, शी डज नॉट हैव एनी रिलेटिव, शी इज लिविंग ऑल अलोन, शी गोज टू ऑफिस, ईट्स एवरी डे फ्रॉम सम बाहर से मंगवा कर, और उसका कोई मन नहीं है एक्सरसाइज करने का क्योंकि उसके आसपास कोई, शी वाज अ सिंगल चाइल्ड, नाउ she does not even have parents, but
आपने क्या देखा, उसने सिम्टम बताए, अच्छा आपका वजन ज्यादा है, आप वजन कम करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप ऐसा खाना खाइए। अगर आप थोड़ा सा और उसके साथ टाइम व्यतीत करते तो पता चलता है कि वो नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और गोल ही नहीं है, उसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, उसके घर में, वो जब घर में आती है तो कोई उसको लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वो कहाँ से वो मोटिवेट होगी कि वो एक डाइट भी फॉलो करे, एक्सरसाइज भी करे। तो हर एक पेशेंट के पीछे एक स्टोरी होती है, उसकी बीमारी के पीछे एक स्टोरी होती है। टाइम दीजिए उन्हें, उनको समझने की कोशिश करिए। और सिर्फ पेपर पे एक केस शीट पर एक इंसान की डायग्नोसिस लिख देने से आप ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है। यू हैव टू बी रियली compassionate with patients, and if you have chosen this field, please be passionate about and compassionate about your patients. And that brings us to the last question we have for you. If every listener right now could unlearn just one idea about gender and reproduction, what should it be? Okay, so one thing is that, see, जेंडर के बारे में आपको बिल्कुल हटा देना है, अभी न्यूट्रल हो गया है। लड़कियां, they are not born with this feeling of motherhood. Just like boys, they are also studying, they are also in school, colleges, they have ambitions, they have their dreams, to write their name on horizon, to be entrepreneur, to earn money, to be something. The motherhood thing also comes like, okay, they have to actually feel, not forcefully only sometimes, that they have to produce, okay? सेम वे आप किसी जेंडर पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि आप माँ बनना ही जरूरी है, या ये तो अंदर से आना चाहिए, नहीं। अगर वो अपने अंदर ये ला रही है फीलिंग, और वो 9 महीने उनके लिए टफ होने वाले हैं, जिसमें कि उनको बहुत सारी तकलीफें फिजिकल मेंटल होने वाली हैं, और वो शायद जॉब छोड़ें, शायद अपना काम छोड़ना पड़े, बेड रेस्ट पर चले जाएं और वापस से उस काम को। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि जेंडर बायस होके आप एक जेंडर पर ये इम्पोज करें कि ये इस जेंडर का काम है, बच्चा पैदा करना, बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना, ब्रेस्ट फीडिंग, नो, दिस इज नॉट राइट। इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। यू आर, एज अ फादर, you are pregnant too. You have to take full responsibility of your pregnancy of your family. Like आप दोनों प्रेग्नेंट हैं, आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दोनों के, क्योंकि सिमिलर ड्रीम्स हैं, सिमिलर एस्पिरेशंस हैं, दोनों को बच्चा पैदा करना है, वो पालना है, फैमिली बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल से एकदम जेंडर न्यूट्रल हो जाइए आप। एज अ टीम, यस, वी शुड वर्क। कुछ चीजें हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं तो फीमेल कराएगी, कुछ फादर कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट फीड करा दिया तो बब करा के सुलाएंगे, वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम झंडा लेके खड़े हो गए कि हम अलग, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमें भगवान ने ये दिया है टू प्रोड्यूस baby and to breastfeed the baby, and it is really good bonding with the baby. ये एक हमारा काम है। तो टीम नहीं होती, हमेशा ही टीम के हिसाब से ही काम किया जा सकता है। इफ यू हैव अ टीम, यू कैन सक्सीड, वह 1 और 1 11 करके। मगर जेंडर न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ही सही बात की है आपने. So Dr. Kalra's message is clear. Gender bias is not just a social flaw. It's a silent epidemic that continues to shape lives, families, and futures. Her book, I Want a Boy, just doesn't document patient stories. It challenges all of us to rethink how we define worth, womanhood, and justice. In her clinic and through her words, she's giving voice to women who've been silenced for far too long. If today's conversation moved you, share it, talk it, and question what we normalize. Do pick up a copy of her book. The link is shared in the description box below. Thank you, Dr. Kalra, for your courage, compassion, and commitment to change. And to our listeners, until next time, stay curious, stay critical, and never stop asking who gets to matter and why. Thank you very much, Namrata. Thank you. It's really nice.